Now we'll see the charged particles moving in a uniform magnetic field. And always remember that, okay, if a charged particles move in a uniform magnetic field, it will always acquire a circular path. And this concept is used in where it is cyclotron. Okay, and cyclotron is a device which used to accelerate the charged particles. Okay, so by accelerating the charged particles in a circular motions, it will acquire a very high velocity, and the way the target is there, and we have to hit that target. Okay, for example, there is the many reactions are there where the fast moving charged particles is required, and for to get the fast moving particles, we use cyclotron. We use the cyclotron, and same concept cyclotron, this concept is used in cyclotron here. Okay, see now the charged particles moving in a uniform magnetic field. Suppose this is a uniform magnetic field. Okay, this cross means not it is positive charge, it is a magnetic field, uniform magnetic field here. Okay, so for example, any charged particles is here, it is moving. Okay, when the charged particles move in a circle, okay, in a uniform magnetic field, it acquire a circular path. Okay, now see, these the radius are here, or it's moved to go here, and due to what, okay, again from these particles, again your radius, again it's what, okay, so this, okay, this is the velocity, directions of the velocity, and this is the radius means by this it will what, now see, these particles will not allow to come out of the what, this circle. Why? क्यों ये जो particles, why this one charge particles ये जो यहाँ से बाहर नहीं आ पाता है, why, क्यों है ऐसा? Why? Because there is a centripetal force is there. Okay, so now see, first of all, the what force is developing here? The two type of force are here acting. One is the magnetic force. Okay, one is magnetic force is here, and magnetic force, we know that it is equal to how much case? Q V cross B, which is equal to Q BB sin theta, and since angle here is equal to how much it is? 90 degree, therefore sin 90 is equal to 1 Q B. Equation number 1. At the same time, when a charged particles moves in a circular path, it acquires the centripetal force again. Okay, तो यहाँ पे centripetal force फिर से acquire हो जाएगा, यहाँ पे establish हो जाएगा, यहाँ पे centripetal force. तो centripetal force is mv square by r. So now see at equilibrium. Okay, at the point is equilibrium. Okay, at equilibrium means at stable equilibrium, then this will be what now? Mv square by r is equal to q vb. With this cancel, and by cross multiplication, so what we get now? Q B R is equal to mv, then r is equal to mv by qb. This is the radius relationship we have got. By this radius, the charged particles is moving. Okay, now see, at the same time again, wait now, at the same time again, if the radius we have got the radius, and what will be the frequency? What will be the frequency? And velocity is v, and frequency will be what here? Frequency means time. Okay, so time period we will find, and time period opposite is what? Frequency only. Okay, time period. Now see, time period is equal to velocity by time period is equal to since velocity is equal to distance by time. Therefore t is equal to distance by what? Velocity.
The distance by what it is? Velocity. Then t is equal to distance by what it is? Velocity. And distance is what? Distance is 2 pi r. 2 pi r means circumference it is 2 pi r by d, which is equal to 2 pi into r. R is here what? M mv by q b into what? B. This we get cancel and we will get 2 pi m by qb. This is the time period, and frequency will be 1 by t is equal to frequency f. F is equal to what? qb by 2 pi m. Now अभी यहाँ पे देखो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या जो होगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई बाय टी. 2 pi by t we know that one omega is equal to 2 pi by t, and omega represent the what? Angular frequency. Then which is equal to n, okay, 2, which is equal to 2 pi into 1 by t is what? Frequency. And 2 pi into frequency is equal to how much? qb by 2 pi m. Now this one 2 pi will get cancel, then what will get? qb by m. Okay, now see angular frequency is also called gyro frequency. Okay, remember it. We have seen the charged particles moving in a uniform magnetic field. Okay, so now we will see the helical path. In helical path we will find the pitch here with their pitch. Okay, the pitch will be what? The question will be something they will ask about the pitch also. Helical means what? It is move up. Okay, it moves up here. So now see, okay, here this is this is y axis, this is z, and this is x here. See, x, and the charged particles is plus here, and it's moving. Okay, it's moving in this way. Okay, and this is the distance between the two circle is called the what? It is called the what is pitch. It is called the pitch. Okay, then this will be your Vn is the velocity along the normal, and this will be Vb. This will be Vb, and from here draw the V, means the velocity here, velocity. Okay, normal. Okay, see now in this case Vb angle, this angle, suppose that this angle be the theta. So this angle be the theta, and Vb, see now, okay, Vb, okay, then for Vb, okay, suppose this will not be, this will not take as a theta, we will take this angle as a theta here, theta. If this angle is theta, then this is what is perpendicular, this is 90 degree, and this will be what it is? Base. For the base, cos theta is equal to base. Base is Vb, and hypotenuse it is V. Therefore V. So by the cross multiplication we will get Vb is equal to V cos theta. Okay, and similarly sin theta is equal to perpendicular. Perpendicular is what now? So this is Vn. If this is Vn, and this will be also be what it is? Vn. Perpendicular is here Vn by hypotenuse is V, and by the cross multiplications Vn is equal to, okay, V, yes, Vn is equal to V, or it is
sin theta here. Okay, so now see pitch. So now see the value of the pitch. Pitch will be Vb into t. So t is the time period. The time period we have already found earlier. Then Vb will be equal to how much? Vb is equal to how much? V cos theta into time period. See now, time period is equal to how much? Yes, time period. QB by 2 pi 2 pi n by QB. This now we have got the pitch for the helical. This is the helical path. Okay, this is for the helical path. Okay, the next topic is the Ampere-Circuital law, and Ampere-Circuital law is very important. Okay, it is a very important because from the Ampere-Circuital law only we can find the magnetic field in a solenoid. Okay, solenoid, toroid, and so on here. Okay, so now see Ampere-Circuital law. What does it says? See now, Ampere-Circuital law. Okay, current carrying conductor is here I. Current carrying conductor is here I, and the field now see. According to the right hand thumb rule, if the current is where it is up, then the field will be anti-clockwise. Field will be anti-clockwise. Field will be in this way. So suppose that the radius is equal to how much it is? R, from here to here. From here, R it is. Here to here, and this is the dl here. Small portion we have taken the what it is? dl. So Ampere-Circuital law, it says that the integral of the b vector b dot dl is equal to mu naught I. So this we have to prove, or this we have to establish. Now here, okay. So what we will do? Let's take the LHS. Okay, तो हम लोग क्या लेना है यहाँ पे? LHS को लो, इसको मतलब प्रूफ करने के लिए यहाँ पे. तो LHS is what it is? LHS is integral, is the closed integral. Okay. तो b dot dl. So since they are both parallel and they are both in parallel, since b vector and dl are what is parallel, therefore theta is equal to how much it is? 0 degree. Then integral close, then what it is? b dl cos theta, and cos theta is equal to how much? 0 degree, and cos 0 is equal to 1. Cos 0 is equal to how much it is? 1, and this b we have taken outside. Then integral of the what it is? dl, which is equal to dl. We have considered here very small portions here, dl, and total is what it is? L is here the circumference. L is circumference. Therefore, magnetic field. So magnetic field of a long current carrying conductor. Okay, the long current carrying conductor is mu naught by 4 pi 2I by R. Remember it. We have already done earlier. Okay, into integrations of the dl is what it is? L, and L is what? Perimeter we can say, or we can say the circumference also. We can say the circumference also. Then mu naught by 4 pi 2I by R into what it is? 2 pi R. R is the radius here. Then this 2 2s are 4. Again this 2 get cancelled. This pi get cancelled. Then this R and RS get cancelled. Then what is left now? Mu naught into I, which is equal to RHS. Proof. Okay. अभी यहाँ पे देखो, now see after the Ampere-Circuital law, now we'll see the application. So application where we can use Ampere-Circuital law. Applications of Ampere-Circuital law means ACL. See, first of all, we will use to find the magnetic field. Use to find the magnetic field in a कहाँ पे? Solenoid में. And since you know what is the solenoid, you have already studied in class
10, तो क्लास 12 में मतलब क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ लेना हो गए 10 में। तो सोलेनाइड इज व्हाट इज क्या था, तो यहाँ पे वायर को क्या करना है, इंसुलेटेड वायर को क्या करना है यहाँ पे वुंड करना है यहाँ पे, ओके दिस द बैटरी का सोर्स देखे यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या होगा इन दिस वे ना, ओके इन दिस वे यहाँ पे सोलेनाइड यहाँ पे ऐसा होता है यहाँ पे सोलेनाइड के यहाँ पे, ओके। तो सोलेनाइड, तो नाउ सी solenoid, now we are not going to study what is solenoid, this all you have studied in class 9 and 10। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड, तो नीट के जगह स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पे सोलेनाइड। तो सोलेनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, ओके, इट इज जस्ट लाइक द बार मैग्नेट, इट इज जस्ट लाइक द बार मैग्नेट। तो वी कैन मेक दिस वन इन दिस वे आल्सो, बार मैग्नेट जैसे यहाँ पे, तो बार मैग्नेट दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ओके। तो बार मैग्नेट, और ये या तो वी कैन टेक द व्हाट स्टील बार, क्या है यहाँ पे स्टील का बार ले लिया यहाँ पे, तो स्टील का बार ले लिया यहाँ पे, स्टील क्या हो गया यहाँ पे बार हो गया यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या कर लिया यहाँ पे, क्या कर लिया यहाँ पे ऊन कर लिया, तो यहाँ पे क्या दिया, तो नाउ सो व्हेन द करंट I इज पासेस, जब यहाँ पे करंट I यहाँ पे पास कर रहा है ये जो बार में, देन दिस बार स्टील बार बिहेव लाइक द व्हाट बार मैग्नेट। अगर ये मैग्नेट हुआ तो क्या हो जाएगा, फील्ड जो हो जाएगा, तो फील्ड विल बी देयर ना नॉर्थ एंड ये क्या होगा ये साउथ, तो फील्ड विल बी दिस होगी, तो फील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे डेवलप हो जाएगा फील्ड। तो नाउ वी विल सी हाउ मच द फील्ड विल बी डेवलप यहाँ पे, तो कितना फील्ड क्या होगा डेवलप होगा यहाँ पे, ओके। तो नाउ लेट, तो ये जो एंड को चलो यहाँ पे बार मैग्नेट फिर से मैंने यहाँ पे ले लिया बार में यहाँ पे, तो दिस इज A एंड दिस इज क्या होगा B है। तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वेयर इट इज, कहां तक है, नाउ सी, तो टोटल यहाँ पे जो ना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वेयर इट इज A to B, देखिए यहाँ पे B डॉट का जो यहाँ पे dl प्लस, अगेन इसका ऊपर में यहाँ पे जो कुछ इफेक्ट कहाँ पे होगा, ऊपर भी होगा, ओके। दिस इज आल्सो द सिलिंड्रिकल C, और ये क्या होगा ये D, तो कहाँ पे भी B2 है C, तो B डॉट का जो यहाँ पे dl प्लस, अगेन फ्रॉम C to D, तो क्या जाएगा B डॉट का जगह पे dl प्लस, नाउ D to A, तो D to A क्या यहाँ पे B डॉट का यहाँ पे dl is equal to mu naught and what current enclose, तो यहाँ क्या होगा करंट होगा यहाँ पे, तो करंट इनक्लोज, करंट क्या जो हो यहाँ पे इनक्लोज हो यहाँ पे। तो नाउ सी नाउ, तो यहाँ पे क्या जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो क्या जगह B dl, तो B dl cos थीटा, तो cos थीटा मतलब यहाँ पे क्या होगा फील्ड का डायरेक्शंस और लेंथ दोनों क्या यहाँ पे पैरेलल है, दोनों क्या है पैरेलल है, देन cos विल बी व्हाट 0 डिग्री, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो वी हैव नॉट ब्रॉट द ईयर cos, हम लोग नहीं लिखा है, ओके। देन प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंस एंगल क्या है यहाँ पे ये दो का बीच में 90 डिग्री, एंड cos दिस B dl cos थीटा, तो B dl cos थीटा मींस cos 90 0, दिस होल टर्म विल बी व्हाट 0। और अभी यहाँ पे देखो तो ये क्या है रेंज का बाहर है, फील्ड मतलब प्रोड्यूस होगा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इट इज आउट ऑफ रेंज 0 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से देखो फिर एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, अगेन ये 90 डिग्री मींस cos 90 0, दिस इज आल्सो 0 व्हिच इज इक्वल टू म्यू नॉट। अभी म्यू नॉट आ गया, अभी कौन सा करंट यहाँ पे लेना है हम लोगों को, व्हिच करंट, which current we have to take now, कौन सा करंट, which current we have to take, नंबर ऑफ टर्न, अगर नंबर ऑफ टर्न का डिपेंड करते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू व्हाट n बाय क्या हो जाएगा l, तो ये जो फॉर्मूला को याद कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ना, तो नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू व्हाट इट इज n, तो n इज इक्वल टू व्हाट n क्या हो जाएगा l हो जाएगा, तो मींस करंट, तो करंट इन हियर इज व्हाट nl इनटू व्हाट I, तो
कैपिटल एन आई मीन्स देखो ईच टर्म में क्या है आई है in each term there is what I and there's a how many term capital N term and this is equal to how much NL term okay L means how many term NL term okay then see now to take the B what outside because B we have to find हम लोग क्या मिला यहाँ पे B को मिला ना हम लोग यहाँ पे तो B को मिला यहाँ पे then integration of क्या जगह DL is equal to mu naught N L what is I then B into integration so the DL is what L integration so DL is what L so L is equal to mu naught N L I this L will get cancelled therefore we will get B is equal to mu naught N I this is the amount of the magnetic field produced by solenoid now next तो यहाँ पे जो नंबर 2 में यहाँ पे जो होगा इन नेक्स्ट नंबर 2 तो करंट मैग्नेटिक फील्ड हियर तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग toroid okay and toroid was also in class 10 तो class 3 में you have studied the toroid ना तो toroid actually क्या जो होता है toroid means like a tube linear just a tube type का लेवल समझे this the क्या ये वाला ट्यूब जो टाइप है यहाँ पे ओके और यहाँ से वायर को क्या करना है यहाँ पे करके यहाँ से बाहर लेके आओ इन दिस टाइप करंट आई और यहाँ से आई आ यहाँ पे तो एक्चुअली यहाँ पे क्या जो हो रहा है नाउ सी अगर यहाँ से अगर चेक करो नाउ सी अगर यहाँ से वी कैन सी तो यहाँ पे करंट जो ऐसा देना है ऐसा हो रहा है ना दिस टाइप टॉरेंस सबसे बेस्ट है मतलब हेयर बैंड ना हैव यू सीन और नॉट हेयर बैंड दिस टाइप ऑफ दिस टाइप द हेयर बैंड हां भी है उस टाइप का तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल देखो कुछ भी नहीं आते तो ये जो हेयर बैंड है मतलब आई हैव सीन द मेनी स्टूडेंट्स व्हाट वेयरिंग दिस हेयर बैंड टू व्हाट टू गेट द शेप ऑफ व्हाट हेयर चूल का शेप मतलब देने के लिए बॉय गर्ल बहुत लोग यूज करते हैं इसको इवन द सेलिब्रिटी इज आल्सो यूजिंग रोड टाइप करना लाइक दैट व्हाट इट इज या रोड टाइप लिखना करने के लिए ओके तो यहाँ पे देखो फील्ड इट इज आल्सो वेरी सिंपल ओके तो सॉलिड ओके टॉरॉइड यहाँ पे तो टॉरॉइड के लिए देखो यहाँ पे नाउ से अगेन वी हैव टू यूज द व्हाट क्या यूज करना है हम लोगों को एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ तो एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलते हैं यहाँ पे तो क्लोज इंटीग्रल b डॉट व्हाट इज dl इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड i कौन सा वाला i होगा इन क्लोज i तो डायरेक्ट देखो वहां का आएगा था जब हम लोग एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ जब हम लोग प्रूफ किया था डिराइव किया था तो वहां पे देयर हाउ मेनी सर्कल वाज देयर ओनली वन सर्कल मगर यहाँ पे इतना सा सर्कल तो डायरेक्टली वी कैन गिव द व्हाट डायरेक्टली हम लोग आई को नहीं दे सकते हम डायरेक्ट ओके तो मींस वी कैन राइट द इनक्लोज आई जो क्या यहाँ पे इनक्लोज वाला तो आई अभी क्या आता है नाउ सी तो यहाँ पे जो आई जो है यहाँ पे सिंस योर आई डैश तो मान लो यहाँ पे आई डैश ले लिया ओके तो यहाँ पे जो आई जो रिक्वायर आई होगा इनक्लोज आई विल बी हाउ मेनी टर्न्स आर देयर n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर तो n नंबर ऑफ टर्न्स तो एक टर्न का जो सर्कमफेरेंस क्या है एक तो टर्न का तो ये भी तो सर्कल में आ रहा है ये भी रेडियस क्या यहाँ पे r ले लो अगर रेडियस r ले तो 2 पाई r into i अभी वहां पे देखा ओके देन दिस वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे यहाँ पे तो क्या चलेगा यहाँ पे तो b dl cos 0 डिग्री क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम डायरेक्शंस में होगा b और dl का जो डायरेक्शंस होगा यहाँ पे सेम ही होगा देन b dl cos 0 means 1 which is equal to mu naught into n 2 pi r into I then b को बाहर कर लो यहाँ पे b को बाहर ले लिया हम लोग ने then what we get dl is equal to हम लोग को मिलेगा mu naught n 2 pi r into I then b then integrations of the l is what sorry integrations of the dl is क्या है l है
तो इंटीग्रेशन से तो डी एल जो क्या है, एल है, तो एल क्या है, सर्कमफेरेंस है एक का, तो सर्कमफेरेंस व्हाट 2 pi r is equal to mu naught into n into 2 pi r into I। तो 2 pi r get cancel हो गया ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे b is equal to now mu naught n into I। तो now just compare the formula with the solenoid, सेम ही है ना, दिस एनी चेंज, सोलेनाइड का फॉर्मूला को चेक करो, वहां का सोलेनाइड का जो फील्ड का जो फॉर्मूला और टॉरॉइड का फील्ड का फॉर्मूला ऑलमोस्ट इक्वल, सेम ओनली, सेम ही है ना। ओके, देन अगेन नाउ सी इफ आई टोल्ड यू दैट स्मॉल n इज इक्वल कैपिटल स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, द मेनी स्टूडेंट सेज दैट सर ये जो क्या है स्मॉल n जो नंबर ऑफ टर्न है, तो स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न नहीं है, तो स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, पर क्या है लेंथ है, डोंट बी कंफ्यूज मत हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो n जो है ये है नंबर ऑफ टर्न ये है, बट द स्मॉल n इज नंबर ऑफ लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, एंड समटाइम इफ दे से नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या होगा l का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पे, l का वैल्यू क्या हो जाएगा वहाँ पे 1, बट यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया व्हाट इज, ओके यहाँ पे मेंशन नहीं किया सकते, मतलब ये क्या है यूनिट लेंथ है। देन वी कैन नाउ सी सिंस योर n इज इक्वल टू हाउ मच 2 pi r, तो इसका वैल्यू को पुट करो, इसको और मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग और मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, देन व्हाट विल गेट b इज इक्वल टू हाउ मच म्यू नॉट इनटू n इनटू i बाय l इज व्हाट 2 pi r। तो ये भी फॉर्मूला सही है। तो आज का रिक्वायरमेंट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस का हिसाब से, क्वेश्चन का जरूरत से, तो वी हैव टू पुट द व्हाट फॉर्मूला। Okay, now see here, this is the most important, okay, is a very important, maybe in 2017 or 2018 the one questions has asked from here, or graph, the questions will be directly, see now type the questions you get, maybe the question you will get the directly numerical question, but in the most case you will get the graph question, most case you will get the graph question। So now see here the infinite length, what it is, infinite length here means infinite long। Okay, so see for to solve these questions, so how to find the magnetic field and how to draw the what is graph and what type of the formula will get, see now, so what we have done here, wire we have taken of the infinite wire, okay, and current is passes from here in this way, okay, तो current what it is, I current, okay, तो I current यहाँ पे पास हो रहा है यहाँ पे, okay, I current is passing here, and from year to year we have taken it is what it is a, radius is a, okay, and between there one the smaller circle we have taken inside here, and which radius is what, and again one the what, one bigger we have taken here outside this point where it is p, and from year to year it is how much it is, from year to year it is how much, it is r, okay, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा r होगा, and in this case r is more than what, a होगा यहाँ पे, r is more than a, okay, और ये जो सरफेस में क्या होगा r is equal to a, r is equal to a मतलब हो रहा है, और यहाँ पे क्या जो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जो होगा a is less than the what, here, okay, here the a is what, is more than the what, तो यहाँ पे जो क्या जो यहाँ पे अंदर में यहाँ पे in this case your a is what here, less हो रहा है यहाँ पे, a is less हो रहा है यहाँ पे, तो a तो लेस ही था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r, तो we can exactly, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक में यहाँ पे, तो a is more than the what it is r। तो यहाँ पे now see, तो 3 different part will see, okay, तो यहाँ पे see now, तो यहाँ जो टेंजेंशियल दिस विल बी योर dl,
और यहाँ पे डी एल ई होगा और यहाँ पे डी एल ई होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू फॉर द पॉइंट आउटसाइड द व्हाट, पॉइंट आउटसाइड द वेयर इट इज सरफेस। तो सरफेस का आउटसाइड में, तो पहले फील्ड एट आउटसाइड, आउटसाइड, चलो पहले आउटसाइड में करते हैं हम लोग यहाँ पहले। ओके, तो आउटसाइड में जब हम लोग ने कर लिया, हम क्या जो होगा नाउ बाय अप्लाइंग द एम्पीयर सर्कुलर लॉ, बाय अप्लाइंग द एम्पीयर सर्कुलर लॉ व्हाट विल गेट, तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट व्हाट इज I। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ज्यादा नहीं है, therefore we will not take the small n, तो small n we will not take here। okay, then तो since they are in the same direction, they are in the same direction, तो यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो B dl and cos theta, तो cos 90 is equal to how much 1, तो cos 90 is equal to 1 which is equal to mu naught into what it is cos 90 0। okay, तो cos okay means they are means B is parallel to what, B is parallel to dl, then 9 cos is equal to 0 degree। तो यहाँ पे जो a b cos थीटा होगा, तो cos थीटा is equal to how much, ओके, तो ट्रेन का आवाज से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो सोचे cos 0 बोलने लगा, इसमें क्या बोल दिया cos 90, इट इज cos 0, तो cos 0 होगा, तो cos 0 is equal to 1, तो यहाँ पे ये हो गया, तो इसको भी बाहर करो यहाँ पे, देन क्या होगा ये dl, इट इज व्हाट इट इज dl ना, तो dl इज इक्वल टू क्या होगा ये म्यू नॉट इनटू I, एंड dl क्या होगा यहाँ पे, तो आउटर क्या होगा, आउटर क्या है सर्कल, तो आउटर सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या जो होगा, टेल मी नाउ, 2 पाई व्हाट, 2 पाई r होगा, यस 2 पाई r, तो 2 पाई r इज इक्वल टू व्हाट म्यू नॉट इनटू I, देन b इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय r, मींस एट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट P में हम लोग क्या मिला यहाँ पे, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मिला, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो यहाँ पे, तो B इज, तो B यहाँ पे क्या मिला, देखो फिर यहाँ पे आ गया B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यस। चलो फिर अभी एट द वेयर नाउ, कहाँ पे अभी सरफेस में, तो एट द सरफेस में सेम ही होगा, एट सरफेस में, एट सरफेस A इज इक्वल टू R हो जाएगा यहाँ पे, देन B इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई क्या होगा I बाई क्या हो जाएगा A। अभी कहाँ पे जो आना है, अंदर में आना है, कहाँ पे जो आना है अभी, ये जो पॉइंट में लेके आना है यहाँ पे, चलो ये P ले लिया और ये क्या लिया P डैश ले लिया, अभी P डैश में क्या जो होगा अभी, तो P डैश में क्या जो होगा यहाँ पे, ओके, तो नाउ सी इन दिस P डैश, चलो नाउ एट P डैश, एक मिनट लिख लो, अभी यहाँ पे देखो सी नाउ एट P डैश में, ओके, तो एट देखो यहाँ पे P डैश में क्या जो होता है यहाँ पे, तो एट P डैश मींस इनसाइड यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जो होगा A इज मोर देन दी व्हाट R, इज मोर देन दी R, तो करेंट यहाँ पे जो करेंट होगा, देखो सरफेस में क्या था म्यू नॉट इनटू I, सरफेस में क्या था म्यू नॉट इनटू I, तो यहाँ पे होगा सरफेस से बाहर में म्यू नॉट इनटू I, क्या यहाँ पे म्यू नॉट इनटू I जो होगा, इनसाइड में कभी भी जो सरफेस का जो करंट कभी भी नहीं होगा यहाँ पे, तो सर सम चेंज विल बी इन करंट, तो दैट चेंज विल बी नाउ सी हियर, देखो सी नाउ फ्रॉम द एम्पीयर सर्कुलर लॉ क्रॉस B डॉट इनटू dl इज इक्वल टू, तो B क्रॉस क्या है dl, ओके, तो dl नाउ से सॉरी B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे क्या लिया I डैश ले लिया, बिकॉज वी कैन गिव I, अगर I दिया तो यहाँ पे सेम जो हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा में सेम मतलब हो जाएगा, तो सेम नहीं जो है यहाँ पे सरफेस में जो करंट इन सरफेस शुड नॉट बी द व्हाट इक्वल टू हियर, यहाँ पे जो नहीं जो होगा यहाँ पे, तो इसके लिए तो फॉर द करंट, इसके लिए करंट के लिए क्या है यहाँ पे नाउ सी, तो करंट जो इनसाइड में जो करंट है, तो I पर
पर यूनिट एरिया विद रेडियस ए, क्या हुआ, पाई ए स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर। तो ये किससे मैच कर रहे हैं यहाँ पे, किससे मैच कर, देखो चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन चैप्टर में गॉस लॉ का एप्लीकेशंस में हम लोग वहां पे एक क्या था, होलो थिन स्फेरिकल सेल था, और एक क्या था, एक सॉलिड स्फेरिकल सेल में। तो सॉलिड में जो चार्जेस होगा दैट शुड नॉट बी व्हाट क्यू, तो क्या लिया था हम लोग ने, क्यू डैश लिया था वहां पे। तो लाइक इसी तरह से, तो वहां पे यहाँ पे एरिया लिया और वहां पे हम लोग ने क्या लिया था, वॉल्यूम लिया था वहां पे। तो वहां पे क्या लिया था हम लोग ने, वॉल्यूम लेते हैं यहाँ पे। तो लाइक सिमिलर यहाँ पे, तो ये पाई और ये पाई दोनों क्या होते हैं यहाँ पे, दिस पाई पाई विल गेट कैंसल, ओके, देन आई डैश इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ओके, राइट हियर क्विकली। Okay, now by applying the Ampere's circular law, then what we'll get now, तो B integrations of the B dl, I told you that A dot B means B dl cos theta and your theta is equal to 0 degree here, okay, then which is equal to now mu naught I dash, and I dash is equal to how much, I r square by A square, then B take outside, then integration of the dl, then circumference of the circle of radius r, radius r, so 2 pi r equal to mu naught I r square by A square, then which is equal to how much, anything is cancel here, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये r और ये से कैंसिल हो गया, और कुछ है नहीं है और ना, then B is equal to how much will get, mu naught by 2 pi, then I r by A square. In this case, what is the relationship between the magnetic field and R? Directly proportional है, यहाँ पे क्या है, तो B is directly proportional to the R। तो वेट नाउ, थोड़ा सा रुको भी यहाँ पे, तो ग्राफ अगर हम लोग को प्लॉट करना है, यहाँ पे ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है, और ऐसा क्वेश्चंस आया है नीट एग्जाम में, ग्राफ प्लॉट, इफ यू सी द सैंपल पेपर you'll get the question, maybe 2019 or 2020 the question is, but 2021 questions were not came from here, but I think in 20 or 19 they have asked the graph here, then graph will be now see, so graph will be, this will be R and here will be what is field, first for the what, inside, first for the inside, inside what, directly proportional till the where, R is equal to A, means in this case inside B is directly proportional to what, R, and the outside, see now here, outside is where, B inversely proportional, means decreasing, means it is decrease, okay, which means that the field till where it is, R is equal to A, means till the where it is surface, from this point, okay, from here to where, till here it is increases, okay, and at the surface will be what it is, maximum point, maximum value it will give, and after crossing this surface again slowly, your B, as the R increases, B will be decreasing. now see the next is a very important topic, ये बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक यहाँ पे, ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से भी, तो फोर्स बिटवीन टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट, तो यहाँ पे दो कंडक्टर वी हैव टेक, तो वी हैव टेकन द टू कंडक्टर, यहाँ पे दो कंडक्टर जो पैरेलल ले लिया, यहाँ पे एक यहाँ पे ले लिया, एंड नेक्स्ट वी हैव टेकन हियर, तो यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया और यहाँ एक यहाँ पे ले लिया, दोनों का डिस्टेंस इज व्हाट इट इज, डिस्टेंस क्या ले लिया इसका, d, which is separated by the distance d, and current यहाँ पे क्या हो रहा है, in this way it is moving, और current दोनों का सेम डायरेक्शन मैंने लिया यहाँ पे, I have taken in the same directions current,
सेम डायरेक्शन में करंट लिया मैंने यहाँ पे, ओके। तो वेट नाउ, रुको अभी यहाँ पे। तो सी, तो डायरेक्शन यहाँ पे सी नाउ, तो डायरेक्शन क्या जो होगा इसका, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा, फील्ड इज वेयर एंटी क्लॉकवाइज। फील्ड जो कहाँ पे जो होगा, करंट कहाँ पे है, आप है, तो फील्ड विल बी वेयर दिस साइड। तो फील्ड मतलब कहाँ पे होगा ये, दिस साइड होगा ना। तो नाउ सी, अभी यहाँ पे देखो सी नाउ, तो मीन्स इट इज ऑल्सो व्हाट, सेम डायरेक्शन से, ओके। तो सेम क्या है, डायरेक्शन से यहाँ पे दोनों का सी नाउ। उसके बाद में फिर से यहाँ पे सी नाउ फोर्स, सी नाउ फोर्स, फोर्स ऑफ दिस इज वन कंडक्टर, और ये कितना है, टू क्या है, कंडक्टर यहाँ पे, ओके। तो वन कंडक्टर एंड टू कंडक्टर। तो फोर्स इसका कहाँ पे है, टू ऑफ दी वेयर इट इज, कहाँ पे है, F1 फोर्स टू ऑफ दी वेयर F2, और F2 का फोर्स कहाँ पे है, टूवर्ड कहाँ पे है, F1 में, ओके। तो नाउ सी मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पे करंट अगर पास हो रहा है तो फील्ड तो होगा, यहाँ पे फील्ड होगा, एंड फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, B2, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसका, B1 होगा यहाँ पे, ओके। तो B1 एंड B2, ओके। नाउ सी, अभी यहाँ पे देखो F1 इज पॉइंटिंग टू टॉप द वेयर यहाँ पे, और इसकी पॉइंटिंग टूवर्ड यहाँ पे है, ओके। और इसका जब यहाँ पे फील्ड, इसका B2 और इसका फील्ड कितना है, B1। और ऑलवेज इन द केस ऑफ द फोर्स, तो कंडक्टर 1 में इसका इफेक्ट जो आएगा फील्ड, तो फील्ड, और इन ए कंडक्टर 1 द इफेक्ट ऑफ द व्हाट, B2 will come, and for the conductor 2 the effect of the what, B1 will come, okay. And see now this is what, vertically up, it is the vertically up, and this is vertically down। तो जहाँ पे जो क्रॉस जो होगा, क्रॉस जहाँ पे होगा, क्रॉस मीन्स व्हाट, वर्टिकली कहाँ पे है, डाउन है, और ये जो है वर्टिकली कहाँ पे, अप है। एंड डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स, ओके। तो डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स के लिए कौन सा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके। इफ यू, ओके, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी नाउ, अब यहाँ पे हम लोग फोर्स मिल रहा है यहाँ पे ना, तो फोर्स बिटवीन, तो हाउ मच विल बी द फोर्स, तो फोर्स क्या जो होगा फॉर द कंडक्टर, ओके, सिंस, ओके, सी नाउ, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर क्या था, करंट कैरिंग कंडक्टर भूल गया आपको फिर से, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I इंटू आर इट इज डी था ना ये वाला, फॉर ए करंट कैरिंग क्या था ये, कंडक्टर के लिए, फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अब यहाँ पे देखो फोर्स, एंड फोर्स फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर यस्टरडे वी हैव डिराइव, क्या था फॉर्मूला, बिल, BIL बिल था। तो B मतलब क्या था, फील्ड, I मींस व्हाट, करंट, एंड L मींस, ओके, लेंथ। और यहाँ पे जो लेंथ जो होगा यहाँ पे पर यूनिट लेंथ के लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ओके, विल टेक फॉर द पर यूनिट लेंथ के लिए। तो नाउ सी द फोर्स ऑन ए कंडक्टर 1, तो लेट F1 बी द फोर्स, बी द फोर्स ऑन कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर 1 में। तो कंडक्टर 1 में F1 इज इक्वल टू क्या जगह, B2 I1 into 1 L, and L should be 1 per unit length we have to take, okay। I have told you that देखो फोर्स जब हम फाइंड करेंगे F1 के लिए, तो फील्ड होगा 2 के लिए होगा फील्ड, okay। then now see, then F1 is equal to how much now, B2, tell me, mu naught by 4 pi 2 I2 by D, and what here, I1 into 1, then which is equal to mu naught by 4 pi 2 I1 I2 by D, and similarly F2 be the force that is experienced by conductor
कंडक्टर व्हाट 2, तो कंडक्टर 2 में क्या होगा, F इज इक्वल क्या होगा फिर यहाँ पे B1 I2 L, तो L इज इक्वल टू 1 हो जाए यहाँ पे, देन F2 इज इक्वल टू B म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई 2